हेलो। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। सो आज हम लोग एनालिटिकल टेक्निक्स में हम गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर चर्चा करेंगे। सो क्रोमेटोग्राफी लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स का होता है एंड द बेसिक क्रोमेटोग्राफी इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसमें एक पेपर होता है, कैसे उसका सेपरेशंस होता है। एंड और एक तरीका का क्रोमेटोग्राफी होता है, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वहाँ पे इंस्टेड ऑफ पेपर और प्लेट वी हैव यूज्ड कॉलम। एंड क्रोमेटोग्राफी हैज टू फेजेस। कौन कौन सा फेजेस है? एक तो स्टेशनरी फेजेस एंड एक है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो कि कॉलम के साथ में रहता है, दैट इज स्टेशनरी फेज बोलते हैं। दैट मे बी आइदर लिक्विड और सॉलिड। एंड और एक जो फेज होता है, दैट कैन बी पास थ्रू वन in column, particularly one end to another end through the sample, and that place, that phase is called mobile phase, or that is maybe either gas or maybe liquid, depending on the nature of the elutant or nature of the sample we have to analyze. So there are two types of functions also there. That is called partition chromatography and adsorption chromatography. If solid material is used in the column as a stationary phase, then it is called as adsorption chromatography, and the solid material may be either silica gel or maybe the alumina silicate. And the absorption chromatography is based on this solid adsorbent, which has the capacity to absorb the solid particles or from the solvent at different places, called zone or band of the chromatography. And the liquid phase or gas phase is used as elutant or the solvent which pass from one end to another end. So today we are going to discuss particularly gas chromatography, and this gas chromatography is mainly having same two types of functions, either absorption or either partition chromatography. Here we will discuss about what is gas chromatography, instrumentation, theory, and what are the different parts and the detectors, all these things, and the applications mainly. So gas chromatography is also called as gas liquid chromatography. Gas liquid chromatography particularly because actually gas chromatography is used, or as his name is gas chromatography, the column is used and the mobile phase is used as a gas, that is called gas chromatography. That's why it is called a gas chromatography. In the elutant or the solvent is carried towards the column from one end to another end through the gas medium, so its name is called gas chromatography. So gas chromatography mainly used for separation of gaseous and volatile But substances. but sir, why it is called gas liquid chromatography? हाँ, वो उसमें आते हैं गैस लिक्विड क्यों होते हैं। एक्चुअली गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस एक जो मोबाइल फेज होता है ना गैस, दैट व्हाई इट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। जो एक एंड में गैस इज यूज्ड एज ए कैरियर और इल्यूटेंट, मतलब वो सैंपल को लेके एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करता है, उसमें गैस यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैस क्रोमेटोग्राफी। अगेन गैस क्रोमेटोग्राफी इज टू टाइप्स, जैसे कि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो कॉलम रहता है, वो कॉलम के अंदर हम लोग पहले से ही पता है, कॉलम के अंदर क्या रह सकता है, स्टेशनरी फेज रहता है। तो वो स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई सॉलिड जो स्टेशनरी फेज है कॉलम के अंदर सॉलिड है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। और लिक्विड है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड इन द बोथ केस गैस इज पास्ड as a mobile or elutant, that's why it is called a gas solid chromatography. अभी समझ में आया ये गैस लिक्विड और गैस सॉलिड क्यों बोलते हैं। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, इसका मतलब है, स्क्रीन दिख रहा है ना। Yes, sir. हाँ, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी मतलब यहाँ पे देखो गैस जो है मोबाइल फेज है, दो फेज है ना, एक कॉलम ऐसा है, एक कॉलम है मान लो लंबा सा, मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत लंबा होता है।
तो इसका इस एंड से क्या होता है, यहाँ पे जो इल्यूटेंट ये पास करते हैं और एक कॉलम उसके अंदर कुछ भरा हुआ रहता है, दो चीज रहता है। जो यहाँ पे पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज, एंड जो कॉलम के अंदर रहता है इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो ऑलवेज एक गैस है, यहाँ से जब देते हैं ये एक गैस ही दिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैस क्रोमेटोग्राफी। लेकिन ये जो कॉलम में क्या हो सकता है, आइदर सॉलिड और आइदर लिक्विड, दोनों हो सकता है। तो मान लो सॉलिड रहेगा तो क्या बोलेंगे, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और लिक्विड रहेगा तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो नॉर्मली जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है इसका एप्लीकेशंस बहुत कम रहते हैं, और इसका ये प्रिमिटिव टाइप का क्रोमेटोग्राफी है, उतना उसका एफिशिएंसी भी ज्यादा नहीं है और बहुत ही कम एलिमेंट्स जो है उसमें यूज होता है। तो नॉर्मली गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो पहली वाला ये ज्यादा यूज नहीं होता है, और एडवांस वर्जन जो है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मली गैस क्रोमेटोग्राफी मतलब ही समझिए कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि सॉलिड आजकल यूज नहीं होता है, सॉलिड कॉलम ओनली जो कॉलम स्टेशनरी फेज दैट इज यूज एज लिक्विड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन ये दो तरीका का हो सकता है, गैस सॉलिड भी हो सकता है, गैस लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी गैस लिक्विड क्यों बोलते हैं समझ में आया थोड़ा सा अभी, या कुछ मतलब अभी भी डाउट है? नहीं समझे क्या? समझ गया। हाँ, तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दो रहता है, जो नॉर्मली हम लोग भाषा में बोले मोबाइल फेज मतलब जो हमारा सैंपल को कॉलम के थ्रू में पास करेगा, जो लेके जाएगा वो गैस होना ही है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड गैस। और जो कॉलम के साथ जो रहता है वो फिक्स रहता है, आइदर सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है। सॉलिड मतलब वहां पे एल्यूमिना सिलिकेट और कुछ भी मटेरियल जो फिक्स रहेगा दैट इज सॉलिड, आएंगे डिटेल्स में। और जो लिक्विड रहेगा तो वो दैट इज अनदर टाइप ऑफ लिक्विड एंड दैट मे बी कॉल्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन सॉलिड का एफिशिएंसी नहीं रहता है ज्यादा, एंड इट इज प्रिमिटिव टाइप, सो मोस्ट केसेस वी आर यूजिंग लिक्विड एज ए स्टेशनरी फेज एंड गैस एज ए मोबाइल फेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जब सॉलिड रहता है तो उसको जो प्रिंसिपल है दैट इज एब्जॉर्प्शन, तो सॉलिड के साथ जो सैंपल है एडजर हो जाता है तो एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और लिक्विड के साथ जो होता है दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। पार्टीशन मतलब जो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद जो एनायन कैटायन पार्टिस डिफरेंट हो गए, सेम कैटेगरी है, ये सेम थिंग है। अदर पार्टीशन इसी वजह से हो सकता है कि हायर मॉलिक्यूल छोटे छोटे हो जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहेगा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जो लाइटर मॉलिक्यूल है पहले आ जाएगा, डिटेक्टर उसको पहले सेंस कर लेगा, और जो हैवियर मॉलिक्यूल है वो धीरे 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 पास करेगा कॉलम में, तो उसका जो सेंस करने जो थोड़ा टाइम के बाद सेंस करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज प्रीफर। So the father of the gas chromatography won the Nobel Prize and name is John Porter Martin. This is the father of the gas chromatography who invented gas chromatography in 1950. पहले ये डेवलप किया है, तो जॉन पोर्टर मार्टिन इज कॉल्ड फादर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। एंड दुनिया में एक ही कंपनी है जो कि ये पेटेंट को खरीदा हुआ है, जो ये है ना, जो जॉन पोर्टर मार्टिन जो पेटेंट किए थे कि क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक ये है, तो उसी टाइम से लेके एजिलियन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, ही इज द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी मशीन, ये उसका पेटेंट को खरीदा हुआ है। तो 1958 से वही कंपनी अपना डेवलप कर रहा है धीरे धीरे गैस क्रोमेटोग्राफी, और डिपेंडिंग अपॉन द सेंसर डिटेक्टर्स, उसका एटोमाइजर, बहुत प्रकार जो है आपका मशीन का। तो this is the company who is producing gas chromatography machine. Okay. So gas chromatography is widely used for the separation of gaseous volatile substances which is difficult to separate in any other method. ये sophisticated methods है, and this method can be used, जो मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं बाकी कोई मेथड नहीं कर सकता, जैसे थिन लेयर में नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तो सॉलिड लिक्विड होना चाहिए। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, कोई भी मेथड में जो उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है, हमको सेपरेट भी करना है, तो दिस गैस क्रोमेटोग्राफी इज वाइडली यूज्ड फॉर दिस एनी टाइप्स ऑफ डिटेक्शन एंड सेपरेशन। एंड आवर एनवायरमेंटल एनालिसिस में एनवायरमेंटल सैंपल, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल, सारे केस में ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है ये बहुत ही काम आता है।
The performing of gas chromatography separation is vaporized and injected into the head of the chromatograph column. तो उसमें देखेंगे तो एक कॉलम होगा और उसमें एक गैस पाइप कनेक्शन हुआ होगा और बीच में इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन पोर्ट होगा उसमें, जो कि सैंपल को हम लोग इंजेक्ट करेंगे। तो इल्यूशन इज ब्रॉट बाय द फ्लो ऑफ इनर्ट गैसेस, एंड जो गैस हम लोग यूज करेंगे वो गैस का प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली तो गैस का काम क्या है, जो सैंपल को कॉलम का एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेगा। जैसे कि कॉलम ये ऐसे ऐसे कॉलम घूमते घूमते है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगा तो एंट्री से लास्ट एंड तक गैस क्या करेगा, सैंपल तो अपने आप नहीं जाएगा, तो गैस के साथ जैसे फ्लो देते जाएंगे तो वो फ्लो के साथ साथ सैंपल एक एंड से दूसरा एंड जाएगा। एंड इल्यूशन इज ब्रॉट थ्रू फ्लो ऑफ द इनर्ट गैसेस, और इनर्ट गैस हो सकता है, फॉर एग्जांपल इनर्ट गैस मतलब हीलियम होगा या नाइट्रोजन होगा जो कि रिएक्ट नहीं करेगा सैंपल के साथ। And gas chromatography also moving phase pass through the column, okay, and based on this we have two types, जैसे कि हमने बोला कि gas solid and gas liquid। डिटेल्स दिया गया है, गैस सॉलिड मतलब मोबाइल फेज ऑब्वियसली गैस होगा, स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, ये हम लोग अभी। देन गैस लिक्विड, मोबाइल फेज गैस, स्टेशनरी फेज लिक्विड, कॉलम के अंदर भी एक लिक्विड रहेगा। So gas liquid chromatography is generally used for our different separation process and detection of the compounds. So here gas liquid chromatography is greater application than gas solid chromatography. Normally हम लोग इसको ही यूज करते हैं। Semi permanent retention or active polar molecule which reduces available area, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो उसका नेचर क्या होना चाहिए, परमिएबल और पोलर मॉलिक्यूल्स which having higher or decrease the area of size, then what happen, it can be easily passed through this liquid and by the carrier gases. And elution peaks also determine or characterize the different peak, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, यहाँ पे x axis is the retention time and this is called signal strength। उसका सिग्नल जितना पीक होगा that means it's having more accurately detected और purity is high, और retention times ये T1 है तो T2 है, T1 means it having easily air or lighter molecule and T2 having heavily molecules और higher molecules, greater molecule, तो ऐसे भी हो सकता है। क्राइटेरिया ऑफ कंपाउंड टू बी एनालाइज बाय जीसी, कौन कौन सा कंपाउंड है जो कि गैस क्रोमैटोग्राफी में टेस्ट कर सकते हैं। दो कंपाउंड व्हिच हैविंग वोलेटिलिटी, जिसका वो इजीली क्या हो सकता है, वेपर हो सकता है, उस टाइप का हम लोग कंपाउंड ले सकते हैं। थर्मोस्टेबिलिटी, हाई टेम्परेचर में वो स्टैंड कर सकता है, मान लो कोई टेम्परेचर में ज्यादा टेम्परेचर मान ले 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो उसका वोलेटिलिटी दैट कैन बी डिग्रेडेड और दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उस टाइप का हम लोग सैंपल नहीं ले सकते, क्योंकि जो कॉलम के अंदर हम लोग पास करेंगे जो सैंपल, देन कॉलम इज कंटिन्यूअसली हीटेड, उसको गर्म करना पड़ता है, तो that having higher thermostability and also an allied having measurable vapor pressure, उसका वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा मेजर कर सकते हैं एंड एट वेरियस टेम्परेचर, तो दीज आर द कंडीशन व्हिच कैन बी एनालाइज। तो नॉर्मली जो GLC गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, ऑल हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, टोलुइन, सारी चीजें हम लोग वहां पे टेस्ट कर सकते हैं एज ए पोल्यूटेंट। मान लो कोई क्या पोल्यूटेंट्स है और क्या क्या कंपोजिशन है उसको जानने के लिए कंपाउंड में वी कैन बी टेस्ट थ्रू गैस क्रोमैटोग्राफी। एडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमैटोग्राफी, उसका एडवांटेजेस क्या है, इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव मेथड, वेरी सिंपल थिंग है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, एक तो कॉलम रखना है बस, कॉलम हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, आगे आएंगे क्या क्या कॉलम्स है, लेकिन एक कॉलम होगा और सैंपल इंजेक्शन होगा और एक कैरियर गैस होगा, ये तीन चीज है, और क्या होगा वहां पे डिटेक्टर होगा, बस हो गया, थोड़ा सा सिंपल वाला है। एंड द रिजोल्यूशन इज वेरी हाई, डिटेक्शन कैपेसिटी रिजोल्यूशन जो है उसका वेरी हाई, तो इसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। एंड इवन इट इज माइक्रोलीटर सैंपल भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, पीपीबी रेंज में टेस्ट कर सकते हैं, दैट मींस वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज नीडेड टू द टेस्ट, एंड द स्पीड ऑफ एनालिसिस इज आल्सो वेरी फास्ट, दैट मींस 1 सेकंड नहीं लगता, जैसे सैंपल इंजेक्शन किए वेट करना नहीं पड़ेगा, तुरंत इधर पीक आ जाएगा, तो जल्दी हो जाता है टेस्ट, हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ एनालिसिस कैन बी पॉसिबल, मतलब कंसंट्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं सैंपल में कौन कौन सा पीक्स है, जैसे कि कोई क्रोमैटोग्राम है, जैसे कि हमने देखा पहले यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल दिस, इसमें क्या है, दो पिक्स है, मतलब दो कंपाउंड का मिक्सचर है, और इसका एरिया जो है उसको हम लोग निकाल के उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी ले सकते हैं. सो हियर बोथ कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज analysis or identifications can be done by this gas chromatography accurately even if very small amount of the sample has been है. छोटा सा सैंपल, बहुत छोटा सैंपल भी होगा तो उसमें टेस्ट कर सकते हैं. हाउ गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन वर्क्स, तो उसका मशीन में कैसे वर्क करेगा. सिंपल थिंग है, पहले सैंपल को क्या करेंगे, वेपोराइज करेंगे, क्योंकि हम लोग को कैरियर गैस जो है वो गैस है, तो सैंपल लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो ये सैंपल को गैस ले नहीं पाएगा हम लोग. तो फर्स्ट टास्क इज टू वेपोराइज द सैंपल एंड मिक्स विद द गैस. सैंपल को वेपर करेंगे और वो कैरियर गैस के साथ मिक्स करेंगे, और उसको क्या करेंगे, दैट सैंपल मूव्स थ्रू द कॉलम, और कॉलम में जो है, कॉलम में उसको मूव करेंगे. जो कॉलम जो होगा, वो कॉलम का लेंथ भी वेरी करता है, कितना छोटा है बड़ा है वो भी डिपेंड करता है क्या कौन सा टाइप ऑफ कॉलम है. तो सेकंड क्या करेंगे, वो जो सैंपल है अलोंग विथ कैरियर गैस वी कैन बी मूव थ्रू द कॉलम. थर्ड, रिकॉर्ड द पिक. सिंपल सीधा डिटेक्टर में आएंगे, डिटेक्टर देख लेंगे उसमें कौन सा पिक कौन सा टाइम पे आ रहा है, देन वी कैन आइडेंटिफाई. सिंपल है, इजी है. एंड दैट डील विद बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज. मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज दोनों देना है. मोबाइल फेज है कोई इनर्ट गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन. स्टेशनरी फेज क्या हो जाएगा, आइदर सॉलिड होगा और लिक्विड होगा. तो सिंपल थिंग है. So in the mobile phase, compounds of the samples are unevenly drawn into stationary phase, thus enter this phase different times. जैसे कि ये रिटेंशन टाइम अलग अलग होगा, तो दैट्स व्हाई द सेपरेशन और पार्टीशन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टाइम. सो जो क्रोमेटोग्राम में डिफरेंट टाइम में हम लोग जो पीक्स आएगा उसी को हम लोग देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा पीक है. वी हैव ए डिफरेंट सेपरेट डाटाबेस. पहले से हमारे पास एक डाटाबेस होगा कि नहीं है, रिटेंशन टाइम 1.5 सेकंड में है तो ये बेंजीन है, 1.8 सेकंड में है तो ये टोल्यूइन है. तो पहले यही हम लोग जो सिंपल रन करेंगे और उसको स्टैंडर्डाइज करके हमारे पास ऑलरेडी डाटाबेस में सेव होता होगा कंप्यूटर में. तो जब हम अननोन सैंपल डालेंगे तो वहां पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग चेक कर सकते हैं एट द पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम एंड एट द हाउ मच द एरिया अंडर द कर्व इज देयर. ये हम लोग को डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम तो इंस्ट्रूमेंटेशन. ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए, एक कैरियर गैस टैंक चाहिए, जो कि ये कैरियर गैस है. कैरियर गैस टैंक के बाद क्या होगा, फ्लो रेगुलेटर. गैस जो सिलेंडर में गैस को फ्लो रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर चाहिए. ये फ्लो, उसके बाद उसको कितना फ्लो हो रहा है उसको देखने के लिए मीटर भी चाहिए. देन सैंपल इंजेक्शन सिस्टम. ये तो गैस में ठीक है, कैरियर गैस यहाँ पे पास हो रहा है. देन उसका बीच में क्या होगा, एक सैंपल इंजेक्शन सिस्टम चाहिए. ये नहीं सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, ये वाला सैंपल इंजेक्शन सिस्टम जहां पे हम लोग सैंपल डाल सकते हैं. तो ये सैंपल ऐसे डालना भी है, लेकिन क्या है उसको वेपराइज करना चाहिए. तो सैंपल को वेपराइज करने के लिए यहाँ पे जो ये ओवन यूज होता है कॉलम में. ओवन मींस ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर हीट दिया जाता है, उसको टेम्परेचर में वो मूव करेगा. एंड द कॉलम is not a straight column, it's having some spiral binding type of column and large number of columns here. और उसका एक एंड यहाँ पे दूसरे साइड में इधर खुलेगा. तो ये जो है सैंपल इंजेक्शन होगा इसमें, फिर ये कॉलम थ्रू पास होगा along with the carrier gases, and the lastly what happen, the detector we have detect the separate or different phase. कॉलम होगा, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज ऑब्वियसली चाहिए, लास्ट में डिटेक्टर. ये ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक. सिंपल थिंग है. ये देखिए ये प्रैक्टिकल जो है उसका फोटो है, रियल फोटो ऑफ दिस गैस क्रोमेटोग्राफी. ये देखो सिलेंडर है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है सिलेंडर में. मान लो जो गैस है वो गैस का हिसाब से उसका सिलेंडर कलर रहता है. ये रेड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, ये कुछ नहीं है तो ये आर्गन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, ब्लैक होता तो नाइट्रोजन होता. सो डिफरेंट कॉलम है, उसका उसका रेगुलेटर्स है. then it can be input to the instrument. then here the instrument is set up with a computer. यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, कंप्यूटर स्क्रीन में एक सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर में आपका जो इनपुट है फीड कर देंगे, इसका फ्लो रेट कितना रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, कितना मिनट में वो सैंपल पास होगा, डिटेक्टर में दिखेगा. ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में सेट हो जाएगा.
तो फिर क्या होगा, एक बार रन कर दो तो ऑटोमेटिकली ये सारे गैस लेगा, उसके बाद वो टेम्परेचर सेट हो जाएगा, वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो कैरियर गैस सिस्टम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो इसमें आएगा, कैरियर गैस टैंक और कैरियर गैस सिस्टम। सो द कैरियर गैस डिपेंडिंग ऑन आवर सैंपल वी हैव आल्सो यूज डिफरेंट कैरियर गैस। एक सभी सैंपल में एक तरीका का कैरियर गैस यूज नहीं होता है। कैरियर गैस इज द मोबाइल फेज जो मूव करेगा सैंपल के साथ। सो द कैरियर गैस हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज, इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होना चाहिए अकॉर्डिंग विद द सैंपल। मतलब जो सैंपल हम लोग इंजेक्ट करेंगे उस सैंपल के साथ जो गैस कैरियर गैस है उसका प्रॉपर्टीज मैच होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, देखिए, एक तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, और रिएक्टिव नहीं होना चाहिए सैंपल के साथ, अवेलेबल इन प्योर फॉर्म एंड स्टेबल फॉर्म, प्योर 100% वो गैस होना चाहिए। मान लो जो उसको हीलियम है तो 100% हीलियम होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मिक्स होने से नहीं चलेगा। फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, वाटर वेपर भी रहता है गैस में तो उसको भी नहीं होना चाहिए। एंड ये सारे नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है कि जो जैसे कि हम लोग वहां पे फिल्टर यूज करेंगे, जैसे कि गैस है उसको मशीन में डालने से पहले, जैसे कि ये मशीन में, ये तो रेगुलेटर है, रेगुलेटर और मशीन में डालने से पहले यहाँ पे एक फिल्टर होगा कहीं बीच में, तो दैट कैन बी रिमूव मॉइस्चर एज वेल एज इम्प्यूरिटीज, सारे वो फिल्टर हो जाएगा एंड प्योर इनर्ट गैसेस कैन बी एंटर इनटू द सिस्टम। उसके बाद दे शुड गिव द बेस्ट कॉलम परफॉर्मेंस, मतलब जो कॉलम के साथ, मान लो कॉलम में जो लिक्विड होगा या गैस फेज होगा जैसे स्टेशनरी फेज, उसके साथ भी वो अच्छे से मतलब कंबाइन हो सकता है एंड गिव द बेस्ट रिजल्ट सुइटेबल फॉर द डिटेक्टर। डिटेक्टर में भी वो डिटेक्ट होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव, ज्यादा रेट का भी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए एंड सेफ टू हैंडलिंग, एक्सप्लोसिव फ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। और दैट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरियर गैसेस दैट वुड बी used. Then makeup gases, flow rate required the most at detectors of 30 to 40 ml per minute. ये जो है how much this carrier gases that can be required or what is the flow rate, that is 30 to 40 ml per minute, ये होना चाहिए। See, these are the different carrier gases having different applications. Helium भी यूज होता है carrier gases और makeup gases दोनों। नाइट्रोजन, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, समटाइम्स ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड, समटाइम आर्गन इज यूज्ड, समटाइम हाइड्रोजन यूज, प्योर एयर भी यूज हो सकता है एंड आर्गन प्लस मीथेन। दीस आर द डिफरेंट कैरियर गैसेस और मेकअप गैसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कंडीशंस। एफआईडी, टीसीडी, ये क्या चीजें आगे आएंगे। दीस आर द डिफरेंट डिटेक्टर, द टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स में ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये दे आर डिफरेंट कैरियर गैसेस और इन ऑर्डर टू मेकअप द टोटल होल कॉलम, क्योंकि मेकअप गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कॉलम को एम्प्टी नहीं रख सकते, तो उसको हमेशा फ्लोर चाहिए, सैंपल हो या ना हो, कैरियर गैस हमेशा एक कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए और बीच में हम सैंपल इंसर्ट कर देंगे, तो इसके लिए उसको मेकअप गैसेस भी बोला जाता है। सैंपल दे या ना दे, वो हमेशा उसका भाल्व हमने खोला, मतलब दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। प्रेशर रेगुलेटर, गॉज, फ्लो मीटर, ये सारे रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द फ्लो रेट। जो फ्लो रेट है उसको रेगुलेट करने के लिए सारी चीज जरूरत पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ एनालिसिस प्रोड्यूस दिस कंडीशन नेसेसरी, दैट मींस एक्चुअली क्या है, मान लीजिए कोई सैंपल आपको एनालिसिस कर रहे हैं तो इंजेक्ट करना है, तो हम लोग कितना फ्लो रेट डालें उसमें, 1 लीटर पर मिलीलीटर पर मिनट, 2 मिलीलीटर पर मिनट, 10 मिलीलीटर पर मिनट, 30 मिलीलीटर पर मिनट, कितना फ्लो रेट डालेंगे जो हमारा सैंपल को क्या होगा, कॉलम का एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन और एब्जॉर्प्शन देयर सैंपल कैन बी मूव्ड। सो ये सारे चीज हम लोग को पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। मतलब हम लोग डिटरमाइन, मतलब पहले हम लोग ट्रायल और एरर करेंगे, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे, दूसरा कोई एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है, फिर एज यूजुअल हम लोग कुछ सेट करेंगे पैरामीटर्स, फिर उसी पैरामीटर में हम लोग सारे सैंपल रन करेंगे। द नेक्स्ट इज रोटामीटर। रोटामीटर मींस इट इज ए फिक्स लाइन ऑफ कैरियर गैसेस दैट हैज टू सैंपल सोप बबल और रिमूवर। मतलब बबल्स नहीं होना चाहिए। क्या होता है, गैस हम लोग छोड़ते हैं तो बीच बीच में बबल्स आ जाता है, सोप बबल्स टाइप का, तो ये बबल्स नहीं आना चाहिए ऐसे कॉलम्स के अंदर। मान लो कॉलम्स के अंदर ऐसे बबल आ जाएगा तो दैट कैन बी ए error or that we sample that cannot be detected correctly. So we have to, in order to remove the soap bubble, the rotameter can be used. यहाँ पे क्या होगा, जो गैस डालते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर से एक मैकेनिज्म से जो घूमता रहेगा that can avoid to passing the column in the bubbles को रिमूव कर लेगा, that is called rotameter, ये जरूरत नहीं है। Then sample injection
सिस्टम, कैरियर गैस का सारे सिस्टम तो हो गया। देन सैंपल कैसे इंजेक्ट करेंगे, तो फिगर में जैसे डाला देखा था, एक जगह पे एक ऐसे सिरिंज होता है, इसका माइक्रोलीटर सिरिंज, माइक्रोलीटर मीन्स मिलीलीटर, डिफरेंट मिलीलीटर माइक्रोलीटर डिफरेंट डिफरेंट सिरिंज रहता है, बिकॉज द सैंपल इंजेक्शन टाइप इज वेरी मच लेस, और बहुत छोटा अमाउंट और बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सैंपल हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सैंपल इंजेक्ट करने के लिए ये टाइप का लंबा सिरिंज रहता है। एंड दिस टाइप ऑफ सिरिंज इज यूज्ड इन सैंपल इंजेक्टर टू इंजेक्ट द सैंपल एट द टाइम। सो नॉर्मली सैंपल साइज जो है 0.1 माइक्रोलीटर, सो 20 माइक्रोलीटर इसके बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल एंड द फ्लो रेट। मान लीजिए 1 माइक्रोलीटर पर मिनट, जो सॉरी 1 माइक्रोलीटर सैंपल है हमारे पास, तो दैट इज वेरी टाइनी सैंपल्स। सो तो हम लोग फ्लो रेट को 20 डाल देंगे तो क्या होगा, वो तुरंत भाग जाएगा सैंपल को, तो उसमें फ्लो रेट को भी 1 और 2 डालना पड़ेगा, तो धीरे 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 मूव होता जाएगा, तो दैट कैन बी सेपरेट। So depending upon the flow rate of the gas and the conditions of the stationary phase or mobile phase, we have to determine or inject the amount of sample. So normally in environmental analysis, तो जितने जो सैंपल हम लोग डालते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या रहता है 0.2 to 0.5 माइक्रोलीटर सैंपल डालते हैं, तो किसी किसी में 1 से 20 इसलिए लिखा हुआ है इसमें। कैपिलरी कॉलम स्मॉलर बाय फ्रैक्शन ऑफ 100 और मोर, जैसे कि कैपिलरी कॉलम है, कैपिलरी कॉलम मतलब जो अंदर के जो कॉलम सिस्टम्स है वो डिपेंड करता है कितना लंबा है कितना छोटा है, तो उसके ऊपर हम लोग सैंपल डाल सकते हैं। सॉलिड सैंपल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन इनटू दैट कैन बी प्रोसेस्ड आउटसाइड, जैसे कि हम लोग सॉलिड सैंपल हमको ये करना है, तो सॉलिड सैंपल करना हम लोग को कैसे इंजेक्ट करेंगे गैस के साथ, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसको एटमाइज करना होगा, वेपराइज करना होगा पहले, तो उसका अलग से एक सिस्टम होता होगा, तो फिर जब उसको एटमाइज वेपराइज हो जाएगा देन इट कैन बी इंजेक्ट इन द सैंपल, बिकॉज कैरियर गैस इज ए गैस, सो वी हैव टू हैव द सैंपल एज ए गैस फॉर द इनपुट, गैस होगा या लिक्विड होगा दैट कैन बी इजीली वेपराइज, जो जैसे कि ओवन है उसके अंदर इजीली वेपर हो सकता है और गैस के साथ मूव कर सकता है, ऐसे ही होना चाहिए। देन गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम, थर्ड पॉइंट इज इंजेक्टर, पहले तो गैस का कैरियर गैस का टैंकी हो गया, दूसरा उसका रेगुलेटर्स हो गया, फिर उसको बबल रिमूव करने के लिए एक छोटा सा पार्ट्स हो गया, फिर क्या होगा इंजेक्टर, इंजेक्टर के बाद कॉलम, दैट कॉलम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जहां पे ये सेपरेट होगा और क्रोमेटोग्राफी का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड गैस क्रोमेटोग्राम कॉलम और क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। एक्चुअली दिस कॉलम्स आर टू टाइप्स, दो तरीका का होता है, एक पैक्ड कॉलम होता है और एक ट्यूबुलर कॉलम होता है। पैक्ड कॉलम मतलब क्या, जिसमें सॉलिड मटेरियल पैक होता होगा, जो कि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में एल्यूमिना सिलिकेट जैसे बोला कि उसमें, और सिलिकॉन जेलिसर पैक होता है, तो उसमें सॉलिड पैक होता होगा, तो दैट इज पैक्ड कॉलम। दूसरा टाइप का क्या है कैपिलरी कॉलम और ट्यूबुलर कॉलम। ये पैक्ड कॉलम आकार में छोटा रहता है क्योंकि वहां पे पैक्ड रहता है सारी चीजें, और कैपिलरी कॉलम आकार में स्पाइरल रहता है, बहुत लंबा रहता है। यहाँ पे देखो दिखाया पैक्ड कॉलम लेंथ इज 1.5 to 10 मीटर, while the capillary column is 10 to 100 मीटर। देखिए कितना बड़ा है कैपिलरी कॉलम। So capillary column is greater or longer than this पैक्ड कॉलम। 1.5 to 10 मीटर मतलब छोटा रहेगा, और कैपिलरी कॉलम 10 मीटर से 100 मीटर तक भी छोटा हो सकता है, इतना स्पाइरल होता रहेगा उसके अंदर रहता है। सो कैपिलरी कॉलम में लिक्विड यूज रहता है, लिक्विड रहता है स्टेशनरी फेज, एंड द पैक्ड कॉलम में क्या रहता है, नॉर्मली सॉलिड रहता है। सो पैक्ड कॉलम के बारे में आते हैं, तो पैक्ड कॉलम इनर डायमीटर इज अबाउट 2 to 4 millimeters and the tubes are densely packed with different types of solid material that is called diatom or glass bead, मतलब ये सारी चीजें वहां पे पैक्ड रहता है। पर्पस सॉलिड कॉलम इज स्टेशनरी फेज इज टू लार्ज, तो सरफेस एरिया इज पॉसिबल एक्सपोज टू मोबाइल फेज, एग्जांपल नेचुरल अकरिंग डायटम्स आर्थ एंड ग्लास बीड यूज हो सकता है, और ये आर्थ डायटम ये भी यूज हो सकता है। दीज आर द पैक्ड मटेरियल इन द पैक्ड कॉलम। The characteristics of this solid column is it should be small, uniform, good, ये सारे आपकी जरूरत नहीं है, बस you have to know the different types of column, column क्या है। नेक्स्ट आते हैं कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम डायमीटर इज वेरी स्मॉल 1 मिलीमीटर,
मतलब बहुत छोटा और लंबा होता है उसमें। एंड इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, वॉल कोटेड ट्यूबुलर कॉलम एंड सपोर्टेड कोटेड ट्यूबुलर कॉलम। ये डिटेल्स में जानने का जरूरत नहीं है, बस ये देख लो। वॉल कोटेड ट्यूबुलर कॉलम मींस जो कैपिलरी कॉलम होता है उसका जो साइड जो है अंदर का साइड में एक टाइप का मटेरियल कोटेड रहता है, तो उसको बोलते हैं वॉल कोटेड, वॉल में कोट रहता है। सपोर्ट कोटेड मतलब इसमें और एक दूसरे टाइप का इनर सरफेस में रहता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट मटेरियल्स रहता है, आइदर सेम ग्लास और डायटम्स, वो भी थोड़ा सा सपोर्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट कोटेड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूबुलर कॉलम। जैसे जैसे कि यहाँ पे फोटो में जैसे दिखा है, ये पैक्ड कॉलम है, ये वॉल कोटेड कॉलम है, ये सपोर्ट कॉलम। ये दोनों में क्या रहेगा, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इसमें अंदर में जाने के लिए क्या होगा, एक पैसेज रहता होगा, और दिस पैसेज इज फिल्ड विद द स्टेशनरी फेजेस, एंड थ्रू दिस स्टेशनरी फेज ये क्रॉस सेक्शन है, तो उसके अंदर में वो गैस पास होगा। एंड दिस इज ए पैक्ड कॉलम, जो पहले पैक्ड हो पूरा पैक्ड होता रहेगा डिफरेंट मटेरियल्स में, उसके अंदर से ये जाएगा। नेक्स्ट उसका कॉलम के बाद होता है लिक्विड स्टेशनरी फेज, जो कि इसका अंदर में रहेगा। ये इसका अंदर में एक स्टेशनरी फेज रहेगा ना, ये तो पैक्ड कॉलम में सॉलिड रहेगा, बट ये जो सपोर्ट कोटेड वाल कॉलम है कैटेगरी है, उसके अंदर में लिक्विड स्टेशनरी, इसका अंदर एक लिक्विड रहेगा, स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड। एंड द लिक्विड हैविंग लो वोलेटिलिटी और एटलीस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर द टेम्परेचर रेंज, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो स्टेशनरी फेज है उसका 100 से ज्यादा रहना चाहिए, मतलब वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड बी थर्मली स्टेबल, हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी विथस्टैंड एंड केमिकली इनर्ट, वो भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं होना। मेनली जो सैंपल हम लोग पास कर रहे हैं उस सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ये जरूरत नहीं है। सो दीज आर द सम लिक्विड स्टेशनरी फेजेस, जैसे कि सॉलिड स्टेशनरी फेज में डिफरेंट मटेरियल था, सो दीज आर द केमिकल्स दैट यूज ए लिक्विड स्टेशनरी फेज। पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन, फिनाइल पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन, ये सारे जो है ट्राइफेनोप्रोपाइल पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन, ये these are the specialized liquid that can be packed with the that can be in content inside the column, that is called liquid chromatography। में जो लिक्विड है ये है, क्योंकि ये गैस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी है। गैस इज मोबाइल फेज एंड लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, लिक्विड इज द स्टेशनरी फेज प्रेजेंट इनसाइड द कॉलम। ये उसमें खास करके ये एक ही नाम याद कर लीजिए, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन। ये कंपाउंड मेनली रहता है एज ए स्टेशनरी फेज इनसाइड द कॉलम, बिकॉज टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी इज मोर। देखिए इसका 350 डिग्री टेम्परेचर तक ये सह सकता है। एंड नॉर्मली नानोपोलर फेज, हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक्स, स्टेरॉइड्स, ये सारे चीज जब यूज हम लोग टेस्ट करेंगे तो इस टाइप का हम लोग कॉलम यूज करेंगे, जो कॉलम में यही जो लिक्विड फेज रहेगा। एंड डिफरेंट ड्रग्स, स्टेरॉइड, पेस्टिसाइड, ये डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल, ईथर, ये सब टेस्ट करना है, तो ये सारे चीज देना पड़ेगा आपको अंदर में। तो व्हाइलएवर वी आर सिलेक्टिंग द सैंपल वी आर आल्सो सिलेक्टिंग द कॉलम, और कॉलम का सिलेक्शन भी उसका अंदर में क्या मटेरियल्स है, क्या स्टेशनरी फेज है, कौन सा गैस सिलेक्शन करेगा होगा, ये सारी चीज हमको पहले से प्री डिटरमाइन होना पड़ेगा, फिर हम लोग जाके टेस्ट करेंगे। मान लो हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन मतलब जो स्टेशनरी फेज है ये होना चाहिए, इसको छोड़ के दूसरा कुछ हो गया तो ये काम नहीं करेगा, वो कैन नॉट बी डिटरमाइन। सो सिमिलरली केयरफुल यू हैव टू चूज द कॉलम टाइप्स एंड द नेचर ऑफ अकॉर्डिंग द सैंपल। ये सिलेक्शन का पॉली सिलेक्शन का स्ट्रक्चर्स है, ये ऐसे ही रहेगा, रिपीट मतलब ये सिलिकेट्स एक टाइप का। सिलिकेट्स में 3 साइड्स में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप रहेंगे या कुछ हाइड्रोकार्बन ग्रुप रहेंगे, और एक साइड में दे आर सिलिकॉन आर combined with one oxygen or that is called silicate groups. लास्ट पार्ट इज कॉल्ड डिटेक्टर। जब कॉलम का एंड में जो हम लोग टेस्ट करेंगे कौन सा डिटेक्टर हम लोग यूज करेंगे, दैट वी हैव टू आल्सो सिलेक्ट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स एंड बिफोर गोइंग टू देयर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डिटेक्टर कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली डिटेक्टर सेंसिटिविटी अच्छे होना चाहिए, इजीली डिटेक्ट होना चाहिए, एंड पिक्चर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए उसका, टेम्परेचर रेंज भी ज्यादा होना चाहिए,
शॉर्ट रेस्पॉन्स टाइम, दैट मीन्स क्या है, इजीली डिटेक्टेबल होना चाहिए, एंड थोड़ा सा भी है क्योंकि सैंपल क्वांटिटी इज वेरी मच लो, तो स्मॉल क्वांटिटी सैंपल में भी उसको डिटेक्ट करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए, दैट डिटेक्टर शुड बी लाइक दिस। देन नॉन डिस्ट्रक्टिव सैंपल, सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, इस टाइप का डिटेक्टर होना चाहिए। सो डिटेक्टर्स आर थ्री काइंड्स, डिटेक्टर तीन टाइप का डिटेक्टर रहता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसे इंपोर्टेंट। ये है एक फास्ट हो गया टीसीडी, टीसीडी दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। It is also called as catharometer or hot wire detector, and the principle is the thermal conductivity, the नाम जैसे है ये thermal conductivity, because the thermal conductivity of a different sample or different compounds having different thermal conductivity. So in the principle of thermal conductivity we are detect the compound according to the temperature that have content by this sample. So इसका प्रिंसिपल यही है, जब हम लोग ओवन में हीट करेंगे गरम के साथ, तो जैसे हाउ मच थर्मल कंडक्टिविटी हैविंग द कंपाउंड, दैट इज द मेन प्रिंसिपल फॉर दिस टीसीडी। तो टीसीडी इज बेस्ड ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्शन। नेक्स्ट डिटेक्टर जो है दैट इज कॉल्ड, डिटेल्स में उसका एडवांटेजेस भी है, इज वेरी सिंपल एंड लिनियर डायनामिक, नॉन डिस्ट्रक्टिव, वो इजी है, सस्ता भी पड़ता है, बट लो सेंसिटिविटी, इसका लिमिटेशन है, वो इजी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है, एंड कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो ये उसको नेग्लेक्ट भी कर सकता है। तो उसको नेक्स्ट कौन कौन सा थर्मल कंडक्टिविटी किसका किसका है, जैसे कि ये बेंजीन को डिटेक्ट करना है तो थर्मल कंडक्टिविटी इसका फिक्स है, हेक्सेन का थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स है। सो दिस थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर प्रिंसिपल टू डिटेक्ट द सैंपल। मान लीजिए हमें बेंजीन, हेक्सेन, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमको यहाँ पे दूसरा कुछ ड्रग्स मॉलिक्यूल जैसे कि पैरासिटामोल, मान लो उसमें है कि नहीं डिटेक्ट करना है, दूसरा कुछ ड्रग्स कंपाउंड है कि नहीं डिटेक्ट करना है, सो दिस कैन नॉट बी यूज बिकॉज ये thing not having so much capacity to sense this type of complex molecule. To overcome this type of issue, next type of detector is FID, FID, that is called flame ionization detector. ये उससे अच्छा है, TCD से अच्छा है, and normally we are using this type of detector in all gas chromatography. जो भी बड़े बड़े लैब में है, नॉर्मली ये गैस क्रोमेटोग्राफी में, गैस क्रोमेटोग्राफी मतलब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो सॉलिड यूज नहीं होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एंड विथ एफआईडी डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है वो लास्ट पार्ट में अटैच होता है, जो कि कॉलम के साथ, जहां पे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, तो जैसे इसका नाम जैसे है, उसको हम लोग क्या करते हैं वहां पे एक फ्लेम जलता है, और फ्लेम जो सैंपल कंपाउंड है जो यहाँ पे कॉलम से आता है उसको आयोनाइज कर देता है, एंड दैट कैन बी detected or recorded in the computer screen. So this type of detector is very much sensitive, and it is very much higher the detection rate as compared to the TCD, जो thermal conductivity detector से ज्यादा इसका applications है, और it can be a superior than that one. Next type of detector is called electron capture detector, ECD, ECD, ये थर्ड काइंड ऑफ डिटेक्टर है ECD। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है, जैसे नाम जैसा है, इफ द कंपाउंड और द सैंपल हैविंग सम चार्ज पार्टिकल और सम इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव कंपाउंड, देन ओनली इट कैन बी यूज। तो ये ईसीडी भी ज्यादा केस में यूज नहीं होता है, बिकॉज सारे कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दिस टाइप ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ओनली हम लोग कैरियर गैस दे रहे हैं और उसको थोड़ा सा हीट दे रहे हैं, और कॉलम में उसको डिटेक्ट हो रहा है। सो ये ECDE इसका यूज बहुत कम होता है, बिकॉज वेरी लिटिल कंपाउंड, बहुत ही कम कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिक विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, और प्लस माइनस में जो हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है। सो दिस इज थर्ड काइंड ऑफ डिटेक्टर, जो हो गया ECD। देन आते हैं क्रोमेटोग्राम का जो थ्योरी है, क्रोमेटोग्राफी हम लोग जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखा था, तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता था, जो ऐसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ऊपर में एक लाइन था, नीचे सैंपल डालते थे, जो यहाँ पे कोई स्पॉट आता था तो ये A होता था, ये लंबा ये B है, तो जो रिटेंशन फैक्टर है क्या होगा, वो डिफरेंट
time में that how the sample can be detected, that is called main theory. So retention time is the calculation, जैसे कि हम लोग कॉलम में जो पहले डिटेक्ट हो जाएगा उसका रिटेंशन टाइम लो है, और जो बाद में डिटेक्शन होगा रिटेंशन टाइम उसका हाई है. यहाँ पे जैसे कि ये क्रोमाटोग्राम मीन्स जो डिटेक्टर में जो सिग्नल दिया, तो दिस इज टाइम वर्सेट सिग्नल. तो दिस इज कंपाउंड ए मान लीजिए, और दिस इज कंपाउंड बी. तो ये वाला जो कंपाउंड है पीक छोटा है लेकिन पहले डिटेक्ट हो गया है. इसका कंपाउंड बी का जो है पीक बड़ा है और बाद में डिटेक्ट हुआ है. सो दिस इज लाइटर मॉलिक्यूल हैविंग लोअर कंसंट्रेशन एंड हेवियर मॉलिक्यूल हैविंग हायर कंसंट्रेशन. इसका टी एम मतलब डिटेंशन टाइम छोटा है, इसका टी एस मतलब डिटेंशन कम है. तो रिटेंशन टाइम मतलब टोटल दोनों का रिटेंशन टाइम को मिला लो जो है दैट इज टी आर बा टोटल रिटेंशन टाइम दोनों कंपाउंड का. So this is the basic principle of the chromatogram based on the retention time and this detector signal. Uses dead time or avoid time provides the different average migration. Okay, obviously. Then the term resolutions means क्या है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है कभी कभी क्या होता है एक टाइम पे ये जो मान लीजिए ये टाइम है तो ग्राफ है, तो कभी कभी पूरा नजदीक में दो ऐसे पीक आ जाएंगे. तो जैसे दो पीक पास एक ही जगह पे आ गया दैट मीन्स इसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है. तो ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे दो पीक आ रहा है. तो माइट भी पॉसिबल होगा कि दोनों पीक एक ही का होगा, या क्लोजली जो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है दोनों साथ में आ रहे हैं. तो जो ऐसे पास में जो पीक हो जाएंगे तो उसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है बोल सकते हैं. एंड एवरी उसको जब मैग्नीफाई करके देखेंगे तो उसका पीक ऐसे आएगा. तो ऑब्वियसली वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंट रिटेंशन टाइम, तो उसका रेजोल्यूशन हम अच्छा है बोलेंगे, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए पीक. देन एक आता है कॉलम एफिशिएंसी. कॉलम एफिशिएंसी मतलब जो कॉलम है, मान लो एक मिक्सचर हम लोग वहां पे टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 10 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स है. तो जैसे डिटेक्ट होने लगा उसमें 5 डिटेक्ट हुआ और बाकी 5 डिटेक्ट नहीं हुआ, तो उसका एफिशिएंसी लो है. सो हाउ मच द डिटेक्टर कैन बी डिटेक्ट, दैट आर कॉल्ड कॉलम एफिशिएंसी. ये प्लेट थ्योरी इसका जरूरत नहीं है. इसका भी जरूरत नहीं है रेट थ्योरी, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे. ये भी जरूरत नहीं है, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे. जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है. इतना डिटेल्स में नहीं जाना है. लास्ट में हम लोग आते हैं उसका एप्लीकेशंस. गैस क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है. तो हम लोग जैसे कि देखा गैस क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज कर सकते हैं बाय चूजिंग डिफरेंट कैरियर गैसेस, डिफरेंट कॉलम, डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट डिटेक्टर. ये देखिए ये टेबल देखिए, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि कुछ कंपाउंड्स है उसको एनालिसिस करने के लिए उसका कौन कौन सा चूज करना पड़ता है. एक्चुअली देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस कॉलम कैरियर गैस ऑयल सारी चीजें. तो यहाँ पे जैसे सल्फोमाइड या सल्फाजाइन एंटीबायोटिक इसको डिटेक्ट करना है, तो हम लोग कॉलम का लेंथ है, उसका डायमीटर है, उस स्पेसिफिकली ये वाला कॉलम हम लोग चूज करेंगे. टेम्परेचर ये टेम्परेचर में हमको रन करना पड़ेगा. और जो डाइमिथाइलिन जो ये डेरिवेशन मतलब जो ये है उसका कंपाउंड इसको हम चूज कर सकते हैं. और ईसीडी कंपाउंड हमको डिटेक्टर चूज करना है. एंड पेनिसिलिन. तो अलग अलग कंपाउंड के लिए हम लोग को अलग अलग टाइप का कॉलम, अलग टेम्परेचर एंड डिफरेंट द मीडियम एंड डिफरेंट. पार्टिकुलरली देखिए यहाँ पे नॉर्मली हर जगह पे एफआईडी यूज होता है, तो मैक्सिमम एफआईडी कैन बी यूज्ड. एंड द कॉलम लेंथ एंड द डायमीटर दैट इज आल्सो
वेरी फॉर डिफरेंट एनालिसिस, सैंपल एनालिसिस। तो हम लोग ये चार्ट है, ये इतना याद करने का जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो फॉर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस वी हैव यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम लेंथ, कॉलम विड्थ एंड उसका, एंड द नॉर्मली FID इज यूज्ड, मोस्ट केसेस FID यूज्ड एज अ डिटेक्टर, दैट इज फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। नॉर्मली पहले TCD यूज होता था, लेकिन अभी FID यूज होता है। एंड और क्यों, कहाँ पे यूज होता है? Column chromatographer are widely used to establish the purity of organic compound. Organic compound कोई भी बोतल है उसमें लिखा रहेगा बोतल में कि ये 98% प्योर है, ये 99%, 9 पॉइंट प्योर है। दैट मीन्स कितना परसेंट प्योर है उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है? सिंपल कंपाउंड को रन करेंगे वहां पे, तो एक ही पीक आएगा और शार्प पीक आएगा, तो पता चला कि ये प्योर कंपाउंड है। मान ले 2 पीक आया, एक पूरा शार्प पीक आया और उसका साइड में छोटा सा पीक आया, तो जो छोटा सा पीक है वो इम्प्यूरिटीज है। फिर हम लोग वहां पे क्या करेंगे, उसका एरिया देखेंगे तो पता चलेगा कितना इम्प्यूरिटीज है। तो कंपाउंड प्योर है कि नहीं इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्टामिनेंट्स प्रेजेंस और अपीयर्स इन एडिशनल पीक, जैसे मैं बोला कि इम्प्यूरिटीज है, दैट इज में भी कॉन्टामिनेट हो सकता है, तो उसको भी हम लोग पता कर सकते हैं। एंड द एरिया अंडर द पीक रूट एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ कंटामिनेशन, जैसे बोला कि जो एरिया है वो कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द प्रोपेलेंट्स दैट आर यूज्ड इन एरोसल्स। मतलब ये हम लोग जैसे कि गैस डिटेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी गैस है उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, कि उसमें कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज है, कौन कौन सा कॉम्पाउंड्स है, ये सारी चीजें टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का कोई स्मॉग है किसी जगह पे, तो उसमें कौन कंपाउंड क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई एयर सैंपलिंग करेंगे और उसको हम लोग इसी में टेस्ट कर सकते हैं। द प्योरिटी acceptability of the propellant is tested as the moisture, halogen and non-volatile residue of gas। ये इसका गैस क्रोमेटोग्राफी का बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो हम लोग को इसको कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज द प्योरिटी बोथ और आइडेंटिफिकेशन दोनों ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड ड्रॉन करेंगे 3 कंपाउंड के साथ, और नॉन सैंपल ड्रॉन करेंगे, उसके बाद उसको मैच करेंगे। दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हम लोग को पता कर सकते हैं। उसके बाद और क्या होगा? इंटरनल स्टैंडर्डाइजेशन, दैट मीन जीसी हैविंग इंटरनल स्टैंडर्ड्स टू इन ऑर्डर टू कैलिब्रेट द मशीन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर बाद में सैंपल रन करेंगे। इतना ही। ये कैसे आप लोग को पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं स्लोप, उसमें वो रन होता है, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों कंपाउंड एंड कंसंट्रेशन बोथ। This is all about gas chromatography, but this gas chromatography is not the limit. Next is we have to have studied or advanced version of the detection same chromatography में, जिसको बोलते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उसमें आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? ओनली GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मली क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, लेकिन सॉलिड ज्यादा यूज नहीं होता है, नॉर्मली ये गैस ही यूज होता है और स्टेशनरी फेज में लिक्विड रहता है, तो इसको GLC बोलते हैं और नॉर्मली GC भी बोल सकते हैं। एंड द डिटेक्टर मोस्टली यूज इज कॉल्ड FID, दिस इज फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। FID यूज होता है, जैसे पहले हम लोग यहाँ पे है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा यूज होता है, उसमें FID ECD था, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर दैट कैन बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट सैंपल। कहाँ पे था? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन, डिस्क्राइब सम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब ये वाला फिगर जो है, हाँ ये देखिए जी, डिफरेंट कैरियर गैस हम लोग यूज होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिटेक्टर के हिसाब से भी कैरियर गैस यूज होता है। सो दिस पार्ट ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का डायग्राम, लेआउट डायग्राम है। यू कैन बी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। ये एग्जैक्टली ड्रॉ करना जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट राइट दिस कैरियर गैस, फ्लो रेगुलेटर, ऑल दिस 5 जो है इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में आ गया। ये कैरियर गैस 1 नंबर में,
उसके बाद फ्लो रेगुलेटर, ये रेगुलेटर है, ये 2 नंबर में। फिर आ गया क्या, ये सैंपल इंजेक्शन, ये 3 नंबर में। ये कॉलम, ये 4 नंबर में। और ये डिटेक्टर, ये 5 नंबर में। उसके बाद ये जो है कंप्यूटर है, जो कि हम लोग स्क्रीन है रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो ग्राम है, क्रोमेटोग्राम है। दिस इज ऑल अबाउट गैस क्रोमेटोग्राफी। कुछ आइडिया हुआ? यस सर। ठीक है, तो इसको ओके सर। गैस जीसी एंड एचपीएलसी, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे एचपीएलसी, जो कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों टेक्निक्स वाइडली यूज, वेरी मच वाइडली यूज इन एनवायरमेंटल सैंपल एनालिसिस। ये बहुत ही काम आएगा, तो इसको आप एग्जाम के बारे में मत पढ़िए, मतलब नॉलेज के लिए थोड़ा जितना हो सके उतना इसको मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों चीज, मान लीजिए आप कहीं एनवायरमेंटल क्वालिटी एनालिसिस लैब या कहीं पे भी जाएंगे तो आप लोग को यही मशीन मिलेगा, एचपीएलसी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके सर। और ओके। कुछ बोलना है? नहीं सर। ठीक है, खाना पीना हो गया? हाँ सर। आपका हो गया सर? हाँ, मैं तो 7 बजे से खा के सो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ओके कल सर। तो मेरा क्लास नहीं है, परसों हम लोग फ्राइडे को और सैटरडे को हम लोग एक क्लास करेंगे। 29, 30 और होगा तो संडे को भी देख के मतलब कोर्स खत्म कर देंगे थोड़ा बहुत, मैं ठीक है बताऊंगा। सर। ओके सर। ओके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय, थैंक यू। बाय। हेलो, हाँ हाँ, किसी नहीं क्लास करत रहे। हाँ, सॉरी।